Now we shall discuss the next chapter, chemistry in everyday life. In this we have learned drugs, medicines, soaps, detergents, flavoring agents, food chemicals. So we'll see now basic things. What are drugs? Now what are drugs? These are chemical used for curing disease without causing appreciable side effects. Chemotherapy is a science which uses chemical for treatment of disease, that is called as chemotherapy. Drug target, जिस जगह जाकर ड्रग अटैक करता है उसे कहते हैं ड्रग टारगेट. दीज आर बायोमोलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड. तो जिस मॉलिक्यूल, हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं और जिस मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल पे जाकर दवाइयाँ अटैक करती हैं उन्हें ड्रग टारगेट्स कहते हैं. व्हाट आर एंजाइम? एंजाइम वो प्रोटीन है जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करती है, यानी कि हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को जो केमिकल स्पीड अप कर देता है, उन रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देता है, उन केमिकल को कहते हैं biochemical catalyst called as enzymes. Now receptor, these are those proteins which are crucial to communication system embedded in cell membrane. receptor हमारी बॉडी में ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कम्युनिकेशन पास करते हैं, नर्व सिग्नल्स पे हमें पल्स प्रोड्यूस करते हैं, these are called receptors. Then catalytic action of enzyme. Substrate bind with active site of enzyme through ionic hydrogen bond, van der Waals bond for attraction. तो एंजाइम किस तरह से रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है? वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और कौन से फोर्स से? आयनिक हाइड्रोजन डाइपोल या वीक वैन der Waals से, और कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ा देता है. Drug enzyme interaction. Now drug can block the active site of the enzyme and prevent binding of substrate. Such drugs are called enzyme inhibitor. और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ड्रग्स विच compete with natural substrate for attachment of active sites on enzyme. Allosteric site, some drug bind to different site of enzyme are called allosteric site. Change the shapes of enzyme so that substrate cannot recognize it. ड्रग जो डिफरेंट साइट पे अटैक करा एंजाइम के और बाद में एंजाइम वो क्या करता है? शेप चेंज कर देता है सबस्ट्रेट की ताकि एंजाइम रिकग्नाइज ना कर सके. Now chemical messenger, message between two neuron and neuron to muscle carried by them are chemicals called chemical messenger. तो जिससे हमें मैसेजेस पता चलता है, जिस केमिकल से हमें मैसेज के बारे में पता चलता है, उन्हें केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं. Antagonist, drug that bind to receptor site and inhibit natural function are called antagonist. And agonist, drug that mimic natural messenger by switching on receptor are called agonist. Now we shall deal with medicine. The first is antacid. You need to learn examples, दवाइयों के नाम, जो भी मॉलिक्यूल दे रखे हैं, क्योंकि MCQs you will have, you need to know the function of each of them. So antacids are drug which neutralize and hyperacidity. तो acidity के against जो work करता है उन chemicals का basic nature होता है, and these are called antacids. Example are here. Cimetidine and ranitidine prevent histamine to interact with the receptor in stomach wall and control secretion of HCl. तो HCl का अमाउंट कम हो जाएगा और हाइपर एसिडिटी कम हो जाएगी. एंड ये बेसिक मटेरियल होते हैं जो एसिडिटी को कम करने में काम आते हैं, बट स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते, माइल्ड बेस है जो हमारे टिश्यूज़ को हार्म नहीं करते. नेक्स्ट इज एंटी हिस्टामिन. They counteract the effect of histamine which causes allergy like nasal congestion. So which is a chemical that causes allergy, that's histamine. और हिस्टामिन एलर्जी रिलीज, हमारे एनर्जी क्यों होती है? कफ बहुत ज़्यादा क्यों होता है सीजन चेंजेस पे? या आई में डस्ट डालने, आई जब डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो कईयों को इचिंग होती है. सम हैव स्नीजिंग विद डस्ट, लॉट ऑफ टाइम दे विल स्नीज. सो व्हाई इज इट दैट? दैट इज़ बिकॉज हमारी बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है जिसको हिस्टामिन कहते हैं, जो एलर्जी करता है. तो हम दवाइयाँ लेते हैं ताकि हिस्टामिन का अमाउंट कम हो जाए, दैट्स कॉल्ड एंटी हिस्टामिन. सो ब्रोमफेनेरामिन, डिमेटैप, टेफ्रानाडिन, सेल्डेन, Avil, Actifed, antihistamine and anti-acid drugs have different receptors, so they do not interfere. तो एंटीहिस्टामिन हिस्टामिन के अमाउंट को कम करता है और हिस्टामिन एलर्जी क्रिएट करता है. नेक्स्ट इज ट्रैंक्विलाइजर्स. What are tranquilizers? Tranquilizers are chemical used for the treatment of stress, mild or severe mental disease, relieve anxiety, depression. This was also a board question this year. Equanil, Seconal, Valium, Serotonin, Felazin, Ipronazide, etc. are common examples. और इसमें एक पार्ट आता है hypnotics, जो sleep inducing drugs होते हैं और ये sleeping pill का important component होते हैं, like Campos, barbiturates, Clariton, etc. Analgesics are drugs which are used to relieve or decrease the pain without causing unconsciousness. हमें बेहोश नहीं करेंगे, पैरालाइज नहीं करेंगे,
मेंटल कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, बट ये हमारे पेन को कम कर देंगे, और इन्हें कहते हैं एनाल्जेसिक्स. एस्पिरिन, एनाल्जिन, सारिडॉन, एनासिन, एस्प्रो और कॉमन एग्जाम्पल्स. एंड दीज एनाल्जेसिक आर टू टाइप. नॉन एडिक्टिव, एक तो है जो एडिक्शन नहीं देते, और एक ऐसे केमिकल है जो पेन कम करेंगे और एडिक्शन क्रिएट करेंगे, एंड दैट आर कॉल्ड एडिक्टिव और नारकोटिक. नॉन नारकोटिक और नॉन एडिक्टिव का मतलब जो एडिक्शन नहीं करते, पेन को हटा देंगे, अनकॉन्शियस नहीं करेंगे. पैरासीटामोल, एस्पिरिन, दीज आर कॉमन. पैरासीटामोल ब्लड बीपी वाले पेशेंट्स को हम जनरली देते हैं. ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन शो करता है, इसलिए हार्ट अटैक प्रिवेंट हो जाता है. इसलिए एस्पिरिन इज प्रिफर्ड फॉर हार्ट पेशेंट ड्यूरिंग फीवर टाइम. पैरासीटामोल इज नॉर्मली गिवन फॉर पेशेंट हैविंग हाइपर एसिडिटी, उन्हें एस्पिरिन नहीं देते. Please go to the video content of earlier chapter which we have discussed, and that you will find the reason. So you have two type of analgesic, narcotic and non-narcotic. Non-narcotic addictive नहीं होते, these are non-addictive. Now narcotic are habit forming pain reliever and induce sleep. Example, morphine for post-operative cardiac pain, pain of terminal cancer, labor pain and childbirth. Morphine, codeine, heroin are used as narcotic or addictive drug. Addictive या narcotic कह लो. Narcotic is also called as addictive. Addiction होता है इसे. तो analgesics are two type, narcotic and non-narcotic. Antibiotic which destroy the or inhibit microorganism by intervening in their metabolic process, such as salvarsan, as arsphenamine, then penicillin, chloramphenicol, etc. Sulfur drugs are used as antibacterial. Example, prontosil, sulfanilamide, sulfadiazine, sulfapyridine, etc. Bactericidal that kill bacteria. Penicillin will kill bacteria. They won't stop the growth, it will kill the bacteria. और जो अमाउंट को ग्रो होने से रोकता है, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ, इज बैक्टीरियोस्टैटिक. दैट इज एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, क्लोराम्फेनिकोल. दीज आर एंटीबायोटिक्स. नाउ एंटीबायोटिक्स कैन बी ब्रॉड और वाइड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम. दो तरह के एंटीबायोटिक है. ब्रॉड यानी कि हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. अगर वो हर तरह के बैक्टीरिया को किल करता है, यानी कि सारे तरह के ग्राम पॉजिटिव और ज़्यादातर सारे तरह के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम या वाइड स्पेक्ट्रम. लाइक क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइलिन, दीज आर ऑल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड विच किल ओनली अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैक्टीरिया. दैट इज या तो ग्राम पॉजिटिव के लिए काम करेगा किल करने के लिए, या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करेगा. दैट आर नैरो और लिमिटेड स्पेक्ट्रा. नैरो मतलब पर्टिकुलर, नैरो तो नाम से यू कैन रिमेंबर दैट. सो दिस विल ईदर किल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. एक ही कोई किल करेगा, बट हर तरह के बैक्टीरिया को किल करता है, हर रेंज के. दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम. पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, अमोक्सिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आर यूज्ड एज नैरो और लिमिटेड स्पेक्ट्रम. नाउ नेक्स्ट केमिकल दैट वी यूज इज एंटीसेप्टिक, जो हम लगाते हैं. दिस वाज अ बोर्ड क्वेश्चन. जो केमिकल, द केमिकल दैट वी अप्लाई ऑन the living tissues so that the growth of microorganism is inhibited or stopped are called antiseptics. Now they do not harm tissues like sulframycin, furacin, betadine, Dettol, and Dettol is a mixture of chloroxylenol and terpinol, 0.2% phenol. आप एंटीसेप्टिक में कोई भी फिनॉल नहीं लिखोगे, यू हैव टू मेंशन 0.2% फिनॉल, बिकॉज हायर अमाउंट में होगा देन इट विल हैव अनदर एक्शन, इट विल बी हार्मफुल टू आवर बॉडी. Dettol, dilute solution of boric acid. Now disinfectant are chemical which are harmful for tissues. harmful है, टिश्यूज़ पे बैक्टीरिया को किल नहीं करवाएंगे, जर्म्स को किल नहीं करता. फ्लोर या नॉन लिविंग थिंग्स पे अगर जर्म्स है उनको किल करना है, वी यूज़ केमिकल कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट, दैट इज KMNO4, 2% phenol. So phenol can be used as antiseptic disinfectant, but 0.2% phenol is antiseptic and 2% phenol is disinfectant. Chlorine in higher amount, less amount of chlorine is used as like antiseptic. Anti-fertility drugs are drugs that prevent the birth of child. Norethindrine, ethinyl, estradiol, novosterol. So these are common example of anti-fertility drugs. तो ये थे medicines में chemicals. Now next are in food. Food में artificial sweeteners हमने पढ़ा है. ये sweetening agents होते हैं जो calories नहीं बढ़ाते बट स्वीट टेस्ट होते हैं. अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स है, सैक्रिन, एलिटेम, एस्पार्टेम, सुक्रालोज. इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी. सो प्लीज़ अगेन चेक द वीडियो. ईच इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट. विच इज़ मोर शुगर, लाइक मोर स्वीट इन टेस्ट, विच इज़ यूज्ड ओनली इन cold food, not in hot food. Food preservative, they are used to
प्रिवेंट द ग्रोथ और लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ फूड में ना हो, फूड ख़राब ना हो, इसलिए हम केमिकल डालते हैं और फूड की लॉन्गर लाइफ टाइम हो जाती है, शेल पीरियड उसका बढ़ जाता है, दैट आर फूड प्रिजर्वेटिव. फॉर एग्जाम्पल टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल. बट दो तरह के होते हैं, एक तो शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ करते हैं टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, और एक लॉन्गर टाइम सील फूड आइटम्स में हम जो यूज़ करते हैं दैट इज सोडियम बेंजोएट, सॉल्ट्स ऑफ स्कॉर्बिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड एक्सेट्रा. दीज आर क्लास 2 फूड प्रिजर्वेटिव्स. एंटीऑक्सीडेंट जो फूड को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं, लाइक सल्फाइड आर एंटीऑक्सीडेंट फॉर वाइन एंड बियर, शुगर सिरप एंड कट पील्ड और ड्राइड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. तो these are food in like chemicals that are used in food material. Next is soaps. Soaps are sodium or potassium salt of higher fatty acid. Saponification वो process है जिससे soap बनती है. कैसे बनती है? When we are having fat, that is glycerol ester of fatty acid, and you react with NaOH, you get soap, and this is called saponification. Calcium, magnesium hard water में present होते हैं, and hard water is water that contain calcium and magnesium ion, and this is the reason, because of the presence of calcium, magnesium ions, soap are not readily giving more lather. They consume more amount of soap in hard water because they form scum. Detergents are sodium or potassium salt of sulfonic acid of benzene or and quaternary ammonium salt of long chain tertiary amines. These are of three types: anionic, cationic और non-ionic. Detergent तीन तरह के, cationic, non-ionic और anionic. अगर anion वाला part clean करने में काम आता है तो anionic detergent. These are generally used in toothpaste. Example: सोडियम लॉराइल सल्फेट, सोडियम डोटाकाइल बेंजीन, सल्फोनेट एक्सेट्रा. कैटायनिक डिटर्जेंट में क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, और ये हेयर कंडीशनर, सोप्स, शैम्पूज में यूज़ होते हैं. और नॉन आयनिक लिक्विड वॉशिंग डिटर्जेंट्स में हम यूज़ करते हैं. सो वेयर दे आर यूज यू नीड टू नो दीज आर प्रिपेयर्ड बाय स्टेरिक एसिड एंड पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल. इसमें कोई भी आयन्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है. कैटाइन में कैटाइन ही एक्टिव होता है सोप मतलब डर्ट को रिमूव करने के लिए, और एनायन में एनायन इज रिस्पॉन्सिबल. एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स आर ब्रांच्ड. तो ब्रांच्ड है मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दे डू नॉट गेट डिकम्पोज. तो कौन सा डिग्रेडेबल होगा? बायोडिग्रेडेबल विल बी लेस ब्रांच्ड और लीनियर चेन. लीनियर चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट. सो दिस वॉज अ बोर्ड क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ detergent makes it non-biodegradable? So branch chain makes it non-biodegradable. So which will make it biodegradable? Unbranched chain. That is a linear chain. And it is not like it causes pollution. Detergents normally causes pollution because of the branch chain, and these are non-biodegradable.